children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is the United Nations. A rising of the United Nations. Wars have always been there in the world. Their main causes were mostly territory and wealth. In earlier times, they were fought more or less in the form of battles. They ended when one country managed to overpower the other. There was not too much loss of lives or property in general. After the Industrial Revolution, the scene changed rapidly. Some countries very quickly got themselves industrialized. They started manufacturing things on very large scale. By exporting their surplus goods to other countries, they made huge profits and became very rich. Gradually, their interests, mostly economic, began to clash, and that prepared ground for war. Another significant change was the development of all sorts of highly destructive weapons like guns and tanks, fighter and bomber planes, warships and aircraft carriers, etc. They greatly multiplied the striking power of the rich nations. Wars were no longer confined to the battlefields or borders. They now destroyed cities and towns and even industries, the backbone of any economy. Above all, there was unlimited loss of life and property. Millions of people were deprived of their near and dear homes and jobs. Human misery was at its worst. तो बच्चों, अगर हम बात करें तो पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा वॉर्स होती थी और उनका कारण होता था टेरिटरी एंड वेल्थ. एंड जो कंट्री मैनेज कर लेती थी दूसरी कंट्री को हराना, वो जीत जाती थी. पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो ये सब चेंज हो गया. सभी कंट्रीज़ ने खुद को इंडस्ट्रियलाइज कर लिया. उसके बाद उन्होंने अपनी कंट्रीज़ में अपने गुड्स मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट करे एंड उन्हें एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करा. इससे वो लोग बहुत ज़्यादा रिच हो गए. पर ऐसे भी कंट्रीज़ में लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ गईं. उसके साथ वेपन्स में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई. लोगों ने बहुत सारे वेपन्स बनाए जैसे कि गन्स, टैंक्स, फाइटर एंड बॉम्बर प्लेन्स एंड सभी कंट्रीज़ बहुत पावरफुल हो गई. ऐसा होने से उनमें लड़ाई होने के या वॉर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए थे. इन द 20th century, two very big wars were fought. They were called World Wars. World War I was fought from 1914 to 1918 and World War II was fought from 1939 to 1945. Both started in Europe and quickly spread to many other parts of the world. The Second War was far more severe and destructive. It could be stopped only when the United States of America dropped atom bombs on two Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki. तो बच्चों, 20th century में दो बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. एंड उसे रोका कैसे गया? जब यूएसए ने दो जापानीज सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटम बॉम्ब ड्रॉप किया. एटॉमिक अटैक ऑन हिरोशिमा. अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो उस अटैक की एक पिक्चर दी हुई है. अदर थिंग्स अपार्ट, द डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन मिजरी caused by the atomic bombs was beyond all imagination. It scared the people to the core and they started crying for peace. At last, the warring nations agreed to sit together and talk. तो बच्चों, एटम बॉम्ब्स फेंकने के बाद जो मिजरी हुई थी उससे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और रोने लगे थे और वो मांग कर रहे थे पीस की. फिर नेशंस ने अग्री करा कि वो बैठ के बात करेंगे. आफ्टर मैनी राउंड्स ऑफ टॉक्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, इट वॉज डिसाइडेड टू फॉर्म एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन which could prevent wars and maintain peace in the world. The outcome was the United Nations.
तो बच्चों बहुत सारी बातचीत एंड कॉन्फ्रेंसेस के बाद ये डिसाइड हुआ कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो लोगों के लिए पीस के लिए काम करेगी और वॉर्स को होने से रोकेगी। ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था। द यूनाइटेड नेशंस, द नेम यूनाइटेड नेशंस was first suggested by the US President Roosevelt. Finally, representatives of 50 nations met in San Francisco on April 1945. They decided to establish an international organization called the United Nations Organization or UNO. They also prepared the Charter of United Nations. Now its headquarters is in New York in USA. The United Nations came into being on 24 October 1945. Since then, this day is observed every year as the United Nations Day throughout the world. Roosevelt, former president of USA. तो बच्चों यूनाइटेड नेशंस को रूजवेल्ट ने उनका नाम दिया था एंड वो स्टार्ट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 से, इसीलिए उस दिन को यूनाइटेड नेशंस डे कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर लिस्टेड एज फॉलोइंग: टू वर्क फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। तो बच्चों यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जैसे कि दुनिया की सिक्योरिटी एंड पीस के लिए काम करना, टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स। अगर हम ह्यूमंस कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो या इकोनॉमिक हो, यूनाइटेड नेशंस को हमारी हेल्प करनी होगी। टू रिमूव डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज अमंग द पीपल। लोगों में किसी भी बेसिस को लेके कोई डिफरेंस नहीं होने चाहिए। टू असिस्ट इन द अचीवमेंट ऑफ दीज एम्स, लोगों को ये एम्स अचीव करने के लिए मदद करना। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो सभी देशों में यूनिटी एंड कोऑपरेशन लेकर आएं। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, उनका साथ में ये भी काम बनता है कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करें एंड सबके लिए फ्रीडम लेकर आएं। The main aim of the United Nations is to protect the human race from the horrors of war. पर उनका मेन एम ये है कि वो लोगों को वॉर्स से दूर रखें एंड उनसे बचा के रखें। Today, the UNO has been able to achieve many of its goals, but still it has to solve many other problems such as poverty, illiteracy, health, and increase in population. The UN is striving hard to meet all its goals. At the time of its formation, the UN had only 50 members, including India. Now it has more than 190 countries as its members. The United Nations made a declaration about the rights of human beings called the Universal Declaration of Human Rights. It was adopted on 10 December 1948, which is celebrated as Human Rights Day all over the world. तो बच्चों यूएनओ ने अपने काफ़ी गोल्स को अचीव कर लिया है, पर पॉवर्टी, हेल्थ एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन अचीव करना अभी भी बाकी है। यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन बनाई थी अबाउट द राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, और इसे अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 में, जिसे हम ह्यूमन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इट हैज़ गिवन द फॉलोइंग राइट्स टू ऑल द ह्यूमन बींग्स। तो इस ह्यूमन राइट्स डे से हमें कुछ राइट्स मिले हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। ऑल पीपल शुड हैव राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन्स, सबको हक होना चाहिए अपनी कंट्री में फ्रीली रहने का। ऑल पीपल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब इक्वल हैं। एवरीवन शुड बी फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर अकॉर्डिंग टू वंस चॉइस, हम जहाँ चाहें ट्रैवल कर सकते हैं।
वन शुड हैव फ्रीडम ऑफ वर्शिप। हम जिस भी गॉड को वर्शिप करना चाहें वो हम कर सकते हैं। देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सेम काम के लिए मेन एंड वुमेन को सेम पे मिलना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन और सेक्स। कोई भी रिलीजन या सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। वन शुड बी फ्री टू हैव वंस व्यू। हम अपने व्यूज़ को ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। हर इंडिविजुअल के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग होना चाहिए। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर, बट द यूनाइटेड नेशंस इज वर्किंग सिंसियरली to help the human race in its growth and development. India is also a member of the UNO. It was among the first 50 nations who signed the United Nations Charter. Membership of UN is open to all peace-loving nations. तो बच्चों, UN अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, पर फिर भी वो ह्यूमंस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रहा है। थिंक एंड आंसर। बच्चों, इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।